آپ حضرات مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیں اور ہماری مائیں بہنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اپنے کان کو پورے طریقے سے کھول لیجیے، غفلت میں مت رہیے۔ انشاءاللہ کچھ قیمتی باتیں میں آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والا کو اور سننے والے کو دونوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ اللہ کو نہ صورت پسند ہے، نہ اللہ کو لباس پسند ہے، بلکہ اللہ کو تقوی پسند ہے۔ اور جس کے اندر جتنا تقوی ہوگا اللہ کا وہ اتنا قریب ہوگا۔ اس لیے چاہے وہ مرد حضرات ہو یا خواتین ہو، تمام کے لیے تقوی کا اختیار کرنا نہایت ہی ضروری ہے، اور تقوی ہی کا کل قیامت کے دن تول ہوگا، ایمان کا تول ہوگا، عمل کا تول ہوگا، نماز کا تول ہوگا، کلمہ کا تول ہوگا۔ اور جس کے نماز، جس کے روزے، جس کے حج، جس کے زکوٰۃ وزن دار ہوں گے، قیامت کے دن وہ کامیاب ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش میں ہوگا، آرام میں ہوگا۔ اور اما من خفت موازینہ فأمہ ہاویہ، اور جس کا ایمان ہلکا ہوگا، جس کے نماز ہلکے ہوں گے، جس کے اندر تقوی نہیں ہوگا، محترم دوستو، تو اس کا نماز بھی ہلکا ہو جائے گا، روزہ بھی ہلکا ہو جائے گا، ایمان بھی ہلکا ہو جائے گا۔ اور جس کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فَأُمُّهُ ہاویہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِیَہ، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ ما ہیہ کیا ہے؟ فرمایا نار حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ لہذا اللہ کے رسول کملی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے اندر ایمان ہوگا، خواہ وہ ایمان رائی کے دانے کے برابر ہوگا یا رائی کے دانے سے کم ہوگا یا اس کم سے بھی کم ہوگا، شرط ہے کہ وہ اپنا ایمان کو اس دنیا سے بچا کر لے کے جائے۔ فرمایا جو شخص اپنے ایمان کو رائی کے دانے کے برابر بھی اگر بچا کر کے لے گیا تو محترم دوستو وہ سب سے بڑا کامیاب انسان ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ کل قیامت کے دن آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور قیامت تک آنے والے انسان ہوں گے اور تمام کے تمام نبی موجود ہوں گے، رسول اور پیغمبر موجود ہوں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں۔ تو محترم دوستو، جنت والے جب جنت میں جا کر کے ایک دوسرے کے اوپر غور کریں گے کہ میرا فلاں رشتہ دار نظر نہیں آ رہا ہے، میرا ماموں نظر نہیں آ رہا ہے، اور میرا خالو نظر نہیں آ رہا ہے، میرا چچا نظر نہیں آ رہا ہے، تو یہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ پروردگار عالم، میرا فلاں ماموں، میرا فلاں چچا اور خالو نظر نہیں آ رہا ہے، آخر یہ لوگ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، یہاں
सिर्फ दो ही ठिकाना है, या तो जन्नत है या तो जहन्नुम है। अगर वो लोग जन्नत में दिखाई नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो लोग जहन्नुम में हैं। लेकिन ये जन्नती लोग कहेंगे, परवरदिगार आलम, मेरा मामू तो जुमा नमाज पढ़ने आया करता था, मेरा चचा तो रमज़ान के महीने में रोज़ा रखा करता था, और मेरा खालू तो कभी कभी सदका खैरात भी किया करता था, अल्लाह उसका रसूल का भी नाम लेता था। आज अल्लाह का नाम लेने वाला, रसूल का नाम लेने वाला, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला, जुमा पढ़ने वाला आज जहन्नुम में है। ये कैसा तेरा इंसाफ है? तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देंगे, कहे मेरे फरिश्तों जाओ और जिसके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है उसको तुम निकाल करके ले आओ। और फरिश्ते मोहतरम दोस्तों जहन्नुम के अंदर जाएंगे और जिसके सीने के अंदर राई के दाने के बराबर ईमान चमकता होगा, ईमान दमकता होगा, फरिश्ते उस शख्स को, उस आदमी को जहन्नुम से निकाल करके ले आएंगे। फिर मोहतरम दोस्तों फिर दूसरे नबियों को हुक्म देंगे अल्लाह तबारक व तआला कि आप भी अपनी उम्मतों में से उन लोगों को जहन्नुम से निकाल लो जिसके सीने के अंदर राई के दाने से भी कम ईमान होगा। तो फरमाया फिर फरिश्ते नबियाँ जाएंगे, रसूल जाएंगे, पैगंबर जाएंगे और उन लोगों को जहन्नुम से निकालेंगे जिसके सीने में राई के दाने से कम ईमान होगा। एक है राई के दाने के बराबर जिसका ईमान होगा उसको फरिश्ते निकाल लेंगे, लेकिन जिसके सीने में राई के दाने से भी कम होगा उसको दूसरे नबी अपने अपने उम्मतों को जहन्नुम से निकाल लेंगे। फिर जब वो लोग निकल जाएंगे फिर हमारे और आपके नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आएगी। अल्लाह तबारक व तआला काली कमली वाले आकाए नामदार हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाएंगे और कहेंगे, ए मेरे हबीब, ए मेरे लाडले नबी, अब तेरी बारी है, जा और अपनी उम्मत के उन लोगों को जहन्नुम से निकाल लो जिसके सीने में राई के दाने से कम ईमान जिसके सीने के अंदर मौजूद है उसको भी जहन्नुम से निकाल लो। कमली वाले आका हमारे और आपके शाफी महशर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नुम में जाएंगे और जिसके सीने में राई के दाने से कम जिसके सीने में ईमान होगा उसको भी अल्लाह तबारक व अल्लाह के हुक्म से उसको भी जन्नत से निकाल देंगे। जब जन्नत से निकालेंगे तो वो लोग जहन्नुम कैसे हो चुके होंगे? फरमाया बिल्कुल काला कोयला हो चुके होंगे। जिस तरह से हम और आप दुनिया में किसी चीज़ को आग के अंदर जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जलकर कोयला हो जाता है, तो ये दुनिया की आग जहन्नुम की आग से 70 गुना कम है। कितना है भाई? 70 गुना कम है। और अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम में जो आग रखा है उस आग का दर्जा हरारत 70 गुना बढ़ा हुआ है। तो फरमाया दुनिया की आग को अल्लाह तबारक व तआला ने 70 गुना कम करके भेजा है। अब दुनिया वाले जब लोहा को जलाना होता है, स्टील को जलाना होता है, सोना चांदी को जलाना होता है, तो फिर इस दुनिया की आग को 10 गुना हरारत बढ़ा देते हैं। और जब ये दुनिया की आग 10 गुना हरारत बढ़ जाता है तो फिर ये लोहा को जला देता है, लोखंड को जला देता है, सोना और चांदी को जला देता है। लेकिन आखिर कौन सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नमियों को जहन्नुम की आग को 70 गुना क्यों बढ़ा करके रखा है? तो फरमाया इंसान जो गुनाह करता है, इंसान जो खता करता है, इंसान जो निस्यान करता है, वो निस्यान लोहा से भी खतरनाक है, वो गुनाह सोना और चांदी से भी ज्यादा सख्त है। इसलिए कि सोना और चांदी को 10 गुना हरारत दे दो, 10 गुना हरारत बढ़ा दो तो सोना और चांदी जलकर पानी हो जाते हैं, लोखंड पानी हो जाता है। लेकिन गुनाह एक ऐसी खता है और एक ऐसी सख्त चीज है कि वो 10 गुना हरारत से ये गुनाह जलने वाला नहीं है, बल्कि इस गुनाह को जलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम की आग को 70
70 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया है। जब इंसान को, गुनाहगार को, खताकार को, फिस्को फुजूर करने वालों को उस जहन्नुम में डालेगा तो फरमाया उस जहन्नुम में उसका गुनाह जलेगा, और वो गुनाह मोहतरम दोस्तों इतना खतरनाक होगा कि उस गुनाह को जलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जहन्नुम की आग को 70 गुना बढ़ा करके रखा है। और जब उस जहन्नुम के अंदर जहन्नुमी जाएगा तो उसके साथ साथ वो भी जलेगा, उसका गुनाह भी जलेगा, और फिर जब जल जल करके कोयला होकर के बाहर निकलेगा तो फिर मोहतरम दोस्तों वो तो बहुत खतरनाक सूरत वाला हो जाएगा, बहुत भयानक सूरत वाला हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला की नजर रहमत होगी, और फिर वो जितने भी जहन्नुम से निकाले गए होंगे उन लोगों को आबे हयात के अंदर, नहरे हयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देगा कि तुम इस नहरे हयात के अंदर गोता लगाओ। जब ये जहन्नमी इस नहरे हयात के अंदर गोता लगाएंगे मोहतरम दोस्तों, जब गोता लगा के बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल खूबसूरत नौजवान होंगे, उसके चेहरे के अंदर नूर होगा और उसके चेहरे के अंदर चमक होगा। तो फरमाया सबसे बाकमाल इंसान वो होगा जो इस दुनिया से राई के दाने के कम से कम भी ईमान बचा करके लेकर चला जाए। और ये दौर वही चल रहा है मोहतरम दोस्तों, इस दौर में हम बाहर निकलते हैं हमारा ईमान खत्म हो जाता है, शाम में सोते हैं सुबह को ईमान नहीं रहता, और सुबह को जाते हैं तो शाम तक ईमान नहीं रहता। फरमाया इस ईमान को बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक ईमान पर कायम रखे, ईमान पर दायम रखे। और ईमान उसी वक्त कायम और दायम रह सकता है जब हम उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करेंगे, जब मस्जिदों की सोहबत में रहेंगे और हलक़ाए मजलिस में बैठेंगे, और जहाँ पर दीनी और तबलीगी काम हो रहा है, जहाँ पर दीनी इज्तिमा हो रहा है, वहाँ पर अपने आप को जुड़ करके रखेंगे और अपने घरों के अंदर तालीम को जिंदा रखेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को रोज रोज बयान किया जाएगा, अल्लाह की बड़ाई बयान की जाएगी, तो खुदा की कसम उस घर के अंदर एक नूर दाखिल होगा और उस घर के अंदर जन्नत नुमा माहौल होगा। और फिर उस घर के अंदर कोई यहूदियत और नसरानियत का तौर तरीका दाखिल नहीं होगा। शर्त है कि हम और आप नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाने वाले बन जाएं, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को अपनाकर और उसको अमल करने में हमें और आपको ऐसा लज्जत महसूस हो कि हमारा दिल चाहे कि हम बार बार सुन्नत को अदा करें, बार बार नवाफिल को अदा करें, सदका खैरात करें, पड़ोसियों के हुकूक को अदा करें, माँ बाप के हुकूक को अदा करें, शौहर के हुकूक को अदा करें, भाई बहन के हुकूक को अदा करें। जब ही होगा मोहतरम दोस्तों जब हम और आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जुड़ेंगे। तो फरमाया ईमान की 3 किस्में हैं, ईमान की 3 किस्में हैं। फरमाया जिस बंदे के अंदर, जिस इंसान के अंदर, जिस मोमिन के अंदर 3 अलामत पाई जाती है, फरमाया उसका ईमान मुकम्मल है। कितने अलामत भाई? 3 अलामत। फरमाया पहली अलामत यह है कि उस आदमी के दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा हो, दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत हो। बीवी से मोहब्बत है वो अलग चीज़ है, बच्चों से मोहब्बत अलग चीज़ है, लेकिन जब रसूल की बात आ जाए, कुरान की बात आ जाए, अल्लाह की बात आ जाए और उसके नबी की बात आ जाए तो मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत गालिब ना आने पाए, बीवी की मोहब्बत गालिब ना आने पाए, दुनिया की मोहब्बत गालिब ना आने पाए, बल्कि सहाबाए किराम ने इस अमल को करके बता दिया और सहाबाए किराम ने साबित कर दिया कि देखो हमारी दौलत भी अल्लाह के लिए कुर्बान है, बीवी बच्चे भी अल्लाह के लिए कुर्बान है, और सारी चीज़ों को उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। ये पहली अलामत है। दूसरी अलामत ये है कि जिस शख्स से भी ये बात करे तो अल्लाह के लिए बात करे और अल्लाह के लिए ही मोहब्बत रखे। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के लिए दुश्मनी और अल्लाह के लिए दोस्ती, फरमाया दूसरी अलामत है। फरमाया इन तमाम चीज़ों को हमें और आपको गौर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर ये 3 चीज़ें मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है
تو یقیناً ہمارا ایمان کامل و مکمل ہے، ہمارا ایمان باطن میں، ظاہر میں اور دل کے نہا خانوں میں موجود ہے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں تو محترم دوستو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کو جاری رکھیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ کا بھی ذکر رکھے، کیونکہ جب کوئی آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے۔ جب ہم اور آپ اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھیں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، رسول بھی خوش ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی پڑھیں، اور جو ہمارے ملنے جلنے والے ساتھی آئے کم سے کم ان کے سامنے بھی ایک مرتبہ بھی کم سے کم لا الہ کا ذکر یا سیرت النبی کا ذکر یا نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق و عادات کا ذکر کریں گے تو وہ مجلس بابرکت ہو جائے گی، اور پھر وہ مجلس کا حساب بھی اللہ کے ہاں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔